Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. Okay, so our topic decreasing and increasing functions depending on given topic. Last four sums are as below. Here the first one is exercise 6.2 13th sum. On which of the following intervals is the function f given by fx is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing question mark. There are four options. First one is 0, 1, pi by 2, pi, 0, pi by 2 and none of these. So let's see answer here. Fx is equals to x raised to 100 plus sin x minus 1 be given function. Differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 100 x raised to 99 and plus cos x. Okay, so now we one by one check out that in which interval our function is strictly decreasing. So first of all we take 0, pi by 2. So for 0, 1 or for 0 less than x less than 1. So from this inequality it is obvious that x greater than 0, so that implies x raised to 99 which is obviously greater than 0, and obviously if we multiply by 100 then obviously which is greater than 0, and x greater than 0, that implies if we take both side cos, so we get cos 0 1, and obviously which is greater than 0, इसका मतलब 1 है, 1 cos x का आंसर 1 से बड़ा होगा तो obviously 0 से बड़ा ही होगा. So cos x greater than 0. Now add these both, we get 100 x raised to 99 plus cos x which is obviously greater than 0 and which is our f dash of x greater than 0. Hence f is strictly increasing on 0, 1. So first option cancel. Now move on second option, that means second interval for pi by 2, pi, or for 0 less than pi by 2 less than x less than pi. Okay, so here x greater than pi by 2, that means pi by 2, that means pi, the value of pi 3.14 by 2, so we get 1 point something answer, that means x is bigger than 1 point something, that means which is greater than 0, so that implies x greater than 0, so that implies x raised to 99 which is greater than 0 obviously, and if we multiply by 100 times, so 100 into x raised to 99 which is obviously greater than 0, and in a second quadrant pi by 2, pi, that means x lies in second quadrant. In a second quadrant our cos function is decreasing. Okay, that means the value of cos which is negative, and if we add these both terms, so we get 100 into x raised to 99 plus cos x which is obviously greater than 0, and that implies f dash of x greater than 0. How I write that the function is greater than 0? Because we know that the range of cos x which is close minus 1, 1, if we take cos x is equal to a minimum value minus 1 here or put here, and if we x is equal to take 1, okay, minimum value 1, so here answer is 100, so 100 minus 1 we get 99, so minimum value we get 99, and which is obviously greater than 0, and if we put the value of x 1 by 1, 2, 3, 4 something here, so 1 raised to 99, 2 raised to 99, that means we get a larger number, and multiply 100, that means a larger than larger number. Okay, and here our smallest the value of cos x smallest value which is minus 1, so obviously final answer which is greater than 0. Hence f is strictly decreasing on pi by 2, pi, so obviously second option which will be cancelled. Now move on our third interval for pi by 2, 0, pi by 2, or for 0 less than x less than pi by 2. Okay, obviously x greater than 0, so that implies x raised to 99 greater than 0, 100
into x raised to 99, which is obviously greater than 0, and in a first quadrant cos x, which is positive. Now add these both terms, we get 100 into x raised to 99 plus cos x, and we get greater than 0, so that implies f dash of x greater than 0. Hence f is strictly increasing. Here we get increasing on 0 comma pi by 2. So there is no interval in which our function is strictly decreasing. So answer is option number D, none of these. I hope you understand. Okay students, proceed. Exercise 6.2, 14th sum. Find the least value of a such that the function f given by fx is equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on close a comma close 1 comma 2. दैट मीन्स हमें स्मॉल ए की लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी आएगी वो. ओके जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है क्लोज 1 comma 2 पर. सो देख लेते हैं क्या आता है इसके लिए आंसर. सो आंसर हियर we have fx is equals to x square plus ax plus 1 be given function differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 2x plus a. Okay, now given that f is strictly increasing on close 1 comma 2. So therefore f dash of x greater than 0, so that implies 2x plus a greater than 0, that implies 2x greater than minus a, and that implies minus 2x less than a. Give it result number 1, and here the value of x which is greater than minus a by 2. So here x greater than minus a by 2 when x belongs to close 1 comma 2, so that implies 1 less or equal to x less or equal to 2. Put or multiply by 2, 2 less or equal to 2x less or equal to 4. Multiply by negative sign, we get minus 2 greater equal to minus 2x greater equal to minus 4. सीधा कर देते हैं minus 4 लेस और इक्वल्स टू माइनस 2x एंड लेस और इक्वल्स टू माइनस 2. रिजल्ट नंबर 2. अगर ये दोनों रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे ओके, और यहाँ पे 4 को नहीं देखेंगे ओके, 4 को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, माइनस 2x लेस देन a दिख रहा है ना, एंड सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2x लेस और इक्वल टू माइनस 2 दिख रहा है. तो बोल ऑब्वियसली फ्रॉम 1 and 2 द वैल्यू ऑफ a क्या मिलेगा हमें, therefore from 1 and 2 we get a is equals to minus 2. समझ में आ गया. यहाँ पे ये मेन समझना है आपको. माइनस 2x का जो आंसर है वो a से छोटा है, और यहाँ पे माइनस 2x का आंसर माइनस 2 से इक्वल है या उससे छोटा है. दैट मीन्स हमारा a क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस 2 होगा. सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ a विच इज माइनस 2. ओके देख लिया. Exercise 6.2, 15th sum. Let capital I be any interval disjoint from close minus 1 comma 1. Okay, that means we have given I intersection close minus 1 comma 1 is equal to 5. Because I और minus 1 comma 1 के between कोई भी रिलेशन नहीं है. जो कैपिटल I है वो इंटरवल डिफरेंट है, और क्लोज माइनस 1 comma 1 वो हमारा अलग. मतलब दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा. Prove that the function f is given by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I. So here answer, here fx is equals to x plus 1 upon x be given function differentiating with respect to x, we get
f dash of x is equals to 1 minus 1 upon x square. Now I intersection close minus 1 comma 1 is equals to 5. So therefore x belongs to I. So that implies x belongs to R minus open minus 1 comma close minus 1 comma 1, क्योंकि हमारा I क्या होगा फाइनल हमारा इंटरवल, तो जो कैपिटल R है उसमें से हम क्लोज माइनस 1 कॉमा 1 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. समझ में आ गया. तो वो जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल कैपिटल I होगा. सो दैट मीन्स x लेस देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से लेस होगी और 1 से बड़ी होगी. सो इसको मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1. अब इसका स्क्वायर करेंगे, सो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1. अब इसका क्या लेंगे, तो इसको 1 अपन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं विच इज लेस देन 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आंसर अगर 1 से बड़ा है तो उसको 1 अपन करेंगे तो ऑब्वियसली 1 अपन का आंसर 0 पॉइंट समथिंग की आएगा. इसका मतलब क्या है, तो 1 से लेस नंबर आएगा. अब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1, प्लस 1 करेंगे 1 माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और ये हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. सो हेंस f is strictly increasing on capital I. समझ में आ गया, सिंपल है ना. इसका सॉल्यूशन एक बार देख लो. एक्सरसाइज 6/16th sum. Let small f be a function defined on close a comma b such that f dash of x greater than 0 for all x belongs to a comma b. Then prove that f is an increasing function on open a comma b. चलो, this is your last sum depending on increasing and decreasing function. Okay, so let's start. हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारा फंक्शन f है उसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है ऑन इंटरवल ओपन ए कॉमा b. सो लेट सी. Okay, we have to prove that function f is always increasing. That means f of x1 less than f of x2 for x1 less than x2, where x1 comma x2 both are belong to close a comma b. That means both are the member of close a comma b. Proof. अब हमें जो प्रूफ करना है वो हम स्टार्ट करते हैं. लेट x1 comma x2 be two numbers in the interval close a comma b. That means x1 comma x2 belongs to close a comma b and x1 less than x2. Let us consider the interval close x1 comma x2. F is continuous and differentiable in close x1 comma x2 as f is continuous and differentiable in close a comma b. By mean value theorem we get there exists C in open x1 comma x2. That means C belongs to open x1 comma x2 such that f dash of C
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. Given that f dash of x which is greater than 0 for all x belongs to open a comma b, so f dash of c greater than 0 where c belongs to x1 comma x2, so that implies f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 greater than 0, so that implies f of x2 minus f of x1 which is greater than 0, so that implies f of x2 greater than f of x1. So for any two points x1 comma x2 belongs to close a comma b where x1 less than x2, f of x1 less than f of x2, so f is increasing on a comma b. सो ये सिंपल था प्रूफ. इसमें सिर्फ हमने खाली एक मीन वैल्यू थ्योरम का ही यूज़ किया है, बाकी तो सब सेम ही है. स्टार्टिंग में जो हमने देखा आंसर में, ये जो हमें प्रूफ करना था उसको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन एफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ओके, दैट मीन्स एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 फॉर x1 ग्रेटर देन लेस देन x2. x1 कॉमा x2 दोनों किसके मेंबर है? क्लोज ए कॉमा बी के. तो प्रूफ में मैंने दो नंबर सबसे पहले सपोज कर लिए क्लोज ए कॉमा बी इंटरवल के. दैट मीन्स x1 और x2 किसके मेंबर है? क्लोज ए कॉमा बी. एंड x1 में से x2 क्या है? तो x1 छोटा है और x2 बड़ा नंबर है. सो उसके लिए मैंने एक इंटरवल कंसिडर किया है. लेट अस कंसिडर द इंटरवल क्लोज x1 कॉमा x2. देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन x1 कॉमा x2. बराबर, क्योंकि जो मैंने नया इंटरवल जो यहाँ पे सपोज किया है, बराबर ना, तो उसमें हमारा f क्या होगा? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारा जो f है ना वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्लोज ए बी पर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया ही हमें कि f इज अ डिफाइंड ऑन ए क्लोज ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0. बराबर, इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, इसलिए ही तो वो डिफाइंड हो रहा है. बराबर, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसलिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है किस पर? क्लोज ए कॉमा बी पर. ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया? मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ किया. सो ये तो आपको पता है मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन है, मतलब उसका स्टेटमेंट. सो हमारे पास एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दिया है, दिख रहा है. ओके, तो उसका यूज़ करते हैं. आगे मैंने क्या लिया? तो x के रिप्लेस में मैंने यहाँ पे c ले लिया, तो एफ डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0. समझ में आ रहा? एफ डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 वेयर c बिलोंग्स टू किसका मेंबर? c x1 कॉमा x2 का. एफ डैश ऑफ c का आंसर मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. और जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें आंसर जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे हमें मिल गया. सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे फिनिश होता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. ये सम एक बार देख लो. ओके, सो स्टूडेंट्स, होप दैट यू अंडरस्टैंड इन all four sums. I hope you understand in all four sums. So I revise again our last four sums, in which our first sum, okay, in today is our last lectures depending on increasing and decreasing function. Our first exercise 6.213 जो बहुत इजी था. हमारे पास फंक्शन दिया था और ऑप्शंस में 3 इंटरवल दिए थे, और कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था वो हमें चेकआउट करना था. तो वो तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो एफ एक्स था, सिर्फ हमें क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है. जो भी आंसर आता है वो हमें सभी इंटरवल में चेक करना है. हमारे पास 3 इंटरवल्स थे, 0,1, π/2, π, 0,π/2 एंड नन ऑफ दिस. सो फर्स्ट 3 जो ऑप्शन है, फर्स्ट 3 इंटरवल्स है, उनमें से कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं वो हमें चेक करना था. बराबर, तो हमने सबसे पहले 0,1 में चेक किया तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया. उसके बाद π/2, π में चेक किया, उसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया.
और लास्ट हमारा जो इंटरवल था वो था 0,π/2 और उसमें भी हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आया है. दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी इंटरवल दैट gives us our function is strictly decreasing, so we can't finalize that the three intervals which we have given, option number 1, 2 and 3, that our function is strictly decreasing. So the answer is option number D. Okay, इसका मतलब कि हम कोई फाइनलाइज नहीं कर सकते. हमारे जो 3 इंटरवल दिए हमें 3 ऑप्शंस में, ओके, उसमें से कोई भी इंटरवल में फाइनल आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस. उसके बाद हमने 6.2 का 14th सम देखा जो कि बहुत इजी था. हमें क्वेश्चन दिया था, एफ दिया था, उसमें स्मॉल ए की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू कौन सी आती है वो हमें फाइंड आउट करनी थी. और हमें ऑलरेडी फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है क्लोज 1,2 पर, बराबर, क्लोज 1,2 पर हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया ही है ऑलरेडी. तो आपको पता ही है कि हमारा फंक्शन जो उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें 2x + a आंसर मिला. एंड वी हैव गिवन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज 1,2. देयरफॉर आवर कंडीशन इज f dash of x greater than 0 and we have the value of f dash of x which is 2x + 1 put here. So we get 2x + 1 which is greater than 0. उसके बाद हमने क्या किया, a को उधर जो स्मॉल है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. सो वी गेट 2x ग्रेटर देन माइनस है. उसके बाद हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया. देन इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज. सो -2x लेस देन a, उसको रिजल्ट नंबर 1 दिया. और यहाँ पे स्टेप आगे मैंने किया तो मुझे क्या मिला, x ग्रेटर देन -a/2 मिला. अब x ग्रेटर देन -a/2 कब मिलेगा, जब हमारे पास x क्या होगा, बिलोंग्स टू क्लोज 1,2 होगा तब. तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. तो 1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर इंटरवल विच इज स्ट्रिक्ट इन क्लोज इंटरवल. दैट्स वाई वी यूज अ स्लैक इनइक्वालिटी. अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन. इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज. सो ग्रेटर इक्वल टू कन्वर्ट इनटू लेस और इक्वल टू कन्वर्ट इनटू ग्रेटर इक्वल टू. और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. तो हमें आंसर क्या मिला. अभी जो आपको फोकस करना है वो क्या करना है, यहाँ पे -2x है विच इज लेस देन a है, और यहाँ पे -2x है विच इज लेस और इक्वल टू -2 है. अगर आप सिर्फ हमें इतना ही फोकस करना है, इतना था बराबर. तो यहाँ पे -2x लेस देन है और यहाँ पे -2x लेस और इक्वल टू 2 है. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू, मतलब जो स्मॉल है उसके रिप्लेस में आपको क्या दिख रहा है, कौन सी वैल्यू दिख रही है. सो यू सी दैट द वैल्यू ऑफ a विच इज 2. So that's why we write here from 1 and 2 we get a is equal to 2. समझ में आ गया. सो इस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. उसके बाद हमारा था 6.2 का 15th सम जिसमें हमें एक i इंटरवल दिया था और वो क्या है, डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज 1,1 है. इसका मतलब कि अगर आप इंटरवल i का क्लोज 1,1 के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे ना तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, exactly null set. That means empty set. That means phi. We get phi. Okay. Prove that function f is given by fx is equal to strictly increasing on i. मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमारा जो फंक्शन है वो i पर क्या है, on i strictly increasing हमें प्रूव करना है. तो आपको पता है fx है, f dash x फाइंड आउट करेंगे और हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, i इंटरसेक्शन क्लोज -1,1 is equal to phi. So we take x belongs to i. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r माइनस क्लोज -1,1. क्योंकि हमारे जो i है इंटरवल उसमें -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज नहीं है, उसके अलावा सभी वैल्यूज है बराबर. तो उसको हम इंडिविजुअल लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू -1 से कम है और 1 से ज़्यादा है. सो वी राइट x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1. अभी इसको हम मर्ज कर देंगे और मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना होगा. तो हमारे पास एक रूल है कि मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन a होगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा. सो x लेस देन माइनस है एंड x ग्रेटर देन a. सो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है. सो मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 1. उसके बाद हमने स्क्वायर किया x स्क्वायर ग्रेटर देन 1. उसके बाद हमने क्या किया, उसका 1 मतलब उसकी वैल्यू 1 p/q में कन्वर्ट की. तो 1 x स्क्वायर लेस देन 1. ओके, क्यों लेस देन 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 का आंसर जो भी होगा, ओके, x के वैल्यू आप कोई भी पुट करेंगे फ्रॉम r माइनस क्लोज 1,1 में से. सो यू गेट answer 0 point something. That means you get a number which is less than 1. Understand? उसके बाद नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया. सो इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज. उसके बाद +1 किया which is greater than 0. That means f dash of x greater than 0. f is strictly increasing on i. That's it.
एंड जो हमारा लास्ट सम था उसमें तो हमने सिर्फ एक रूल अप्लाई किया। हमारा रूल क्या था? मीन वैल्यू थ्योरम था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एफ डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस तो दिया ही है ऑन क्लोज ए कॉमा बी, और क्लोज ए कॉमा बी में से हमने दो नंबर सिलेक्ट किया x1 कॉमा x2, दैट मीन्स आवर फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज x1 कॉमा x2 होगा, बराबर ना। बस वही हमें रूल अप्लाई किया, और रूल अप्लाई करने के बाद हमारा जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। समझ में आ गया? चलो, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और आपके लिए 4 सम्स मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, ये हमारा भगवान की प्रसादी है। ओके, जिसमें से आपको कौन सी बर्फी ज़्यादा पसंद है, बराबर ना। तो वो 4 बर्फी आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, मलाई बर्फी, मावा बर्फी, अंजीर बर्फी या मैंगो बर्फी, वॉट एवर वी वांट। ओके, तो सबसे पहले होमवर्क में आपके लिए टीम के सम है। टीम के मतलब हमारे घर के सम है, बुक के नहीं है। तो फर्स्ट वाला, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर प्लस। दैट मीन्स क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी दिया है, प्रूव दैट मीन्स हमारा 50% काम तो ईजी हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है इन डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लीकेशन रूल इन डिफरेंशिएशन, you have to apply multiplication rule in differentiation and then calculate it, and जो भी आपका एफ डेस ऑफ एक्स आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ऑन आर प्लस मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सम है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल है, अप्लाई अवर मल्टीप्लीकेशन रूल इन डिफरेंशिएशन। फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो आपका आंसर जो भी आएगा, तो पता ही है कि एक्स जो भी आएगा, इंटरवल्स आप फाइंड आउट करेंगे, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग, वो फाइंड आउट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपन लॉग एक्स। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आपको ई मिलेगा, और ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है। इसका मतलब आप किसके बिटवीन आप प्लॉट करेंगे? नंबर लाइन पर 2 और 3 के बिटवीन आप प्लॉट कर देंगे। सो अवर number line divide into 2 parts. First one is x less than e and second one is x greater than e. That means दोनों इंटरवल में आप आपका एफ डेस ऑफ एक्स क्रिएट करेंगे, वो तो मुझे पता ही है, आप करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे आप डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे इन डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर विच इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। सो उसको रूल अप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका एफ डेस ऑफ एक्स आंसर मिलेगा, ओके, एंड देन यू अप्लाई अवर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंडीशन, एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और उसी तरह आप स्टेप्स करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको एक्स का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्मॉल ई मिलेगा। ओके, तो एक्स लेस देन ई एंड एक्स ग्रेटर देन ई, दो इंटरवल आपको मिलेंगे। दोनों इंटरवल में एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा और दूसरे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। और इसी तरह सिमिलरली हमारा जो लास्ट सम है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एच टू 4x प्लस कॉस एच टू 4x वेर एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2, मतलब लिमिट आपको ऑलरेडी दे दी है 0 to π/2, दैट मीन्स ओनली फर्स्ट इंटरवल। तो इसका भी आप एफ डेस ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा उसको उसके इक्वल्स टू 0 लेके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी? एक्स इज इक्वल टू के π/4 मिलेगा। पर वी हैव टू लिमिट, मतलब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन क्या, हमारा रेस्ट्रिक्ट दिया है एक्स की वैल्यू, रेस्ट्रिक्शन में है कितने हैं? 0 to π/2, तो उसमें आपके एक्स की वैल्यू मिलेगी π/4, क्योंकि इसमें आप के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यू गेट π/4 विच इज बिटवीन 0 to π/2। तो आपके पास दो इंटरवल कौन से मिलेंगे? 0 लेस देन एक्स लेस देन π/4 एंड द सेकंड इंटरवल π/4 लेस देन एक्स लेस देन π/2। सो दोनों इंटरवल में आपको आपका एफ डेस ऑफ एक्स क्रिएट करना है। ओके, क्या आएगा? और उसके बाद वो चेक करना है कि एफ डेस ऑफ एक्स लेस देन आया या एफ डेस ऑफ एक्स ग्रेटर देन आया, वो आपको चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आप लास्ट 2 में तो हिंट दे दी और फर्स्ट 2 तो ईजी है। सो ये दोनों सम्स आपको कंप्लीट करनी है ऑन योर सेल्फ। सो आशा रखता हूँ कि आप ये दोनों सम्स कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स स्टार्ट करेंगे। फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बोर्ड पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इस तरह हमारा ये लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने बोर्ड पर दिखूंगा, आपके सामने
आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक बोर्ड पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।